हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजाता's ट्यूशन। और आज हम मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। हमारे अर्थ में हैं 7 कॉन्टिनेंट दैट आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। Asia is the largest continent of the world and Australia is the smallest continent of the world. Antarctica is the continent which lies on a south pole and hence covered with the thick sheet of ice permanently. In the continent Asia, there is a Tibetan plateau and Himalayan range. The continent Asia and continent Europe are separated from each other by the mountain range, and the name of that range is Ural mountain range, and the region of this Ural mountain range is also called as Eurasia because it lies in between Europe and Asia. Below it there is a continent Africa. Africa is the continent through which world's longest river, that is Nile River, flows. Then next is North America. North America is the continent in which there are two major mountain ranges, that are Rocky Mountain Range and Appalachian Mountain Range lies. Next, South America. South America is the continent in which world's longest mountain range, that is Andes Mountain Range, lies, and also world's largest river, that is Amazon River, is also lies in continent South America. हमने देखा कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका में वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, दैट इज नाइल रिवर फ्लोज, and in continent South America the world's largest river, that is Amazon river, flows. अगर हम इन कॉन्टिनेंट को अच्छे से देखें तो ये हमारे अर्थ के हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, दैट आर दिस इज अ 0 डिग्री, and from this 0 degree this eastern side is eastern hemisphere and this west side is western hemisphere. Hence continent Asia, Australia, Europe, Africa lies in eastern hemisphere, but continent North America, South America are lies in western hemisphere. जिस तरह हमने वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है, उसी तरह हम उनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर द नॉर्थ अमेरिका, दैट इज कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका लाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर. अब हम जब अफ्रीका को देखते हैं तो अफ्रीका एक ही कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं, और दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल दिस 3 लैटिट्यूड पासेस. उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट विच लाइज एंटायरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर. आप देख सकते हैं ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर. उस 0 डिग्री इक्वेटर के साउथ में आते हैं हमारे 2 कॉन्टिनेंट, दैट आर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. हेंस अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि विच 2 कॉन्टिनेंट्स लाइज टोटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. अगर हम क्वेश्चन लेते हैं कि एशिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर, द आंसर इज एशिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अगर हम क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लैटिट्यूड पास होती है, कौन सी तीनों लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आंसर इज अफ्रीका. अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस. अब ये सब जानकारी हुई कॉन्टिनेंट के बारे में. अब हम वर्ल्ड के 5 मेजर ओशियंस के बारे में जानते हैं, दैट आर फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशियन, नेक्स्ट वन इज अटलांटिक ओशियन, नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशियन, नेक्स्ट इंडियन ओशियन एंड लास्ट साउदर्न ओशियन. These are 5 oceans of the world.
Pacific Ocean is the largest ocean of the world and Atlantic Ocean is the second largest ocean of the world. Indian Ocean is the only ocean which is named after the country, that is India. The next one is Arctic Ocean, which encircles the northern latitudes of North America, Europe and Asia. And Southern Ocean is the ocean which encircles the southern latitudes from 60 degrees south and whole Antarctica continent. तो अगर हम एक क्विक रिव्यू ले तो which are 7 major continents that are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica, and which are 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean and Southern Ocean. मैप के थ्रू जानकारी हम अच्छे से समझ सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट के और ओशन के बारे में हमने आज जो जानकारी पढ़ी वो हमारे क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के दैट इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ में बहुत काम आएगी। मैप बेस्ड जानकारी आपको आगे के चैप्टर्स में भी बहुत हेल्पफुल होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। थैंक यू।